This chapter, kids, safety and first aid, we are going to discuss with you: can accident be prevented, road safety, safety at home, safety at school, fire safety, and some rules based on our safety, and that are rules while driving, rules by pedestrian, and rules for fire safety. So these all points we are going to discuss in this chapter. So kids, actually in our earlier video I have already discussed with you some safety points at home, that do not touch the sharp instrument, do not touch the hot vessels, and don't play with the electric means with your bat hands, don't touch the electric points, है ना, and never throw the vegetable or fruits peels on the ground, and don't run when you are climbing on the stairs. These things actually some safety at your home that I have discussed with you in our earlier video, and also I have discussed with you that someone's are going through the two-wheeler or four-wheeler, and they are also talking on the mobiles, or accident can happen on that time. So what we have to do, these everything I have discussed with you in earlier video, and also tell you can accidents be prevented. About that I have also tell you. So kids, today I am again going to discuss with you some other rules, and that rules are based on our safety at school. Okay, so here look on your page, next page or next paragraph, and that is based on the safety at school. So in this paragraph some points are here: never board or get down from a moving bus as you may get hurt. Yes, कभी भी हमें चलते हुए बस से कूदना नहीं चाहिए, ना चढ़ना चाहिए और ना कूदना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज उससे हमें चोट लग जाती है. नेवर टेक योर हेड आउट फ्रॉम द विंडो एज इट मे इंजर यू. कभी भी हमें चलती हुई बस से, या हम स्कूल बस से जाते हैं, वी ऑल गो आवर स्कूल थ्रू द स्कूल बसेज और रिक्शाज और ऑटो रिक्शाज ना. सो डोंट कीप योर हैंड्स और हेड आउट फ्रॉम योर बस और योर रिक्शाज, है ना. कभी भी अपने हेड को, अपने हाथ को कभी भी चलती हुई बस से, मूविंग बस से ना तो आपको उतरना है, ना चढ़ना है, और ना ही चलती हुई बस से या खड़ी हुई बस से भी अपने सिर को बाहर निकालना है, ना अपने हैंड्स को बाहर निकालना है. दीज आर द ऑल सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. आप स्कूल जा रहे हो उस समय पर आपको ये सारी रूल्स फॉलो करना है. स्पेशली यू हैव टू बी कीप ऑन योर माइंड दैट नेवर गेट डाउन और बोर्ड फ्रॉम द मूविंग बस, और डोंट टेक योर हेड आउट फ्रॉम द बस. ओके, now next point, never push other children while climbing or moving down from our stairs. कभी भी हमें किसी भी बच्चे को जो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है या उतर रहा है उसको धक्का नहीं देना चाहिए, ठीक है ना. कभी भी पुश नहीं करना चाहिए. never push other children while climbing or moving down from our stairs. okay, never rock your chair or climb on the desk, यू मे फॉल डाउन. यस, कभी भी हमें आपकी चेयर्स पर और अपने टेबल पर खड़े नहीं होना चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज आप गिर सकते हो. यू कैन सी ऑन योर पिक्चर्स वन बॉय इज पुशिंग द अनदर बॉयज ऑन द स्टेयर्स. दैट इज़ रॉन्ग थिंग. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो क्लाइंबिंग ऑन द डेस्क और ऑन अ चेयर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड थिंग्स. सो दीज आर द रूल्स. There are actually, we just want to discuss with you that these things you can't do at your school, otherwise you may get injured. आप injured हो सकते हैं. okay, now safety in playgrounds. Here I am going to discuss with you some safety rules in playground. अब हमें playground में क्या क्या safety rules को ध्यान रखना है, that I am going to discuss with you here. Never play near a thorny hedges or barbed wires as you get injured. कभी भी हमें ऐसी जगह के पास नहीं खेलना चाहिए जहाँ पर कांटेदार या तो पेड़ या झाड़ियाँ लगी हों, या वायर होते हैं जो कांटे जैसे वायर्स होते हैं, उनके पास नहीं खेलना चाहिए, अदरवाइज आप इंजर्ड हो जाओगे. आप इफ़ यू आर प्लेइंग इन प्ले ग्राउंड, सो यू वी ऑल नो दैट इन प्ले ग्राउंड सो मैनी shrubs and so many hedges are there, and some ones are thorny, some ones are good for us, but please don't touch the thorny hedges or don't touch the barbed wires. ऐसे वायर्स जिनमें तार निकले होते हैं, ऐसे वायर को और किसी भी थ्रोनी चीज़ को, कांटेदार चीज़ों को नहीं छूना है, अदरवाइज यू गेट इंजर्ड. ऑलवेज प्ले अ फेयर गेम, नेवर हर्ट योर ओपोनेंट. यस, आप हमेशा एक अच्छा गेम खेलिए. ऐसी कोई भी गेम मत खेलिए जो एक दूसरे को हर्ट करें, चोट पहुंचाएं, या मतलब ऐसा कोई भी गेम हो जो जिसमें आप मारपीट करें
तो हमेशा एक अच्छा फेयर गेम खेलना चाहिए. ओके. नेवर पुश अदर्स वाइल यू आर स्विंग. आप जब भी झूला झूल रहे हैं तो कभी भी दूसरे को धक्का मत दो. यू ऑल्सो गेट योर चांस, यू ऑल्सो गेट योर टर्न, बट नेवर पुश द अदर्स. दूसरे को धक्का मत दीजिए जब भी आप स्विंग कर रहे हैं ना. ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न. अपने टर्न का वेट करिए कि आपका जब टर्न आएगा देन यू विल also get your chance, है ना. but don't push the other kids. so what safety you have to कीप इन द प्लेग्राउंड्स. क्या क्या रखना है. फर्स्ट कि आपको कभी भी बारवर्ड वायर्स और हेजेस, थ्रोनिंग हेजेस को नहीं छूना है. देन प्ले अ फेयर गेम एंड डोंट हर्ट anyone's, है ना. एंड द अदर थिंग इज दैट वाइल समवन्स आर स्विंग प्लीज डोंट पुश हिम. वेट फॉर योर चांस. ओके. वेट फॉर योर टर्न. नाउ नेक्स्ट, here some rules are also here, and that is for the if you are going on your road, है ना. रोड पर आप जा रहे हो वो भी आपको ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. तो हमेशा कहाँ आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए. दीज आर द सेफ्टी रूल्स ऑन रोड पर चलने के लिए कुछ रूल्स हैं. तो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा रोड जो है क्रॉस करनी चाहिए वो कहाँ से, जेब्रा क्रॉसिंग से. एंड नेवर प्ले ऑन द रोड. और कभी भी सड़क पर खेलना नहीं चाहिए. अंडरस्टूड. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ पे चलना चाहिए. क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए. और नेवर प्ले ऑन द रोड. और सड़क पर कभी नहीं खेलना चाहिए. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, बिफोर क्रॉसिंग टू योर राइट एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन देन क्रॉस द रोड. हमेशा रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना है, ये आपके सब सेफ्टी रूल्स हैं ऑन द रोड. हमेशा रोड क्रॉस करने से पहले आपको लेफ़्ट देखना है, राइट देखना है, फिर राइट देखना, देन यू हैव टू क्रॉस द रोड. हमेशा रोड क्रॉस करने से पहले लुक राइट, देन लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन क्रॉस द रोड. ओके. देन हियर आर सम रूल्स for the safety purpose on the road पर safety purpose के लिए some rules are there, and it is necessary that you have to keep these all the rules on your mind, and these all the signs whatever I'm showing you in this picture, that these all the signs you just have to keep on your mind, not only for reading or learning, only also for your future and also for your safety purpose. These all the things you just have to keep on your mind. Okay kids. So rules that should be followed while driving. फॉलो ट्रैफिक रूल्स एवरीवेयर. येस, आपको हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए. ठीक है ना. और ट्रैफिक रूल्स यू नो, रेड लाइट होती है मीन्स स्टॉप, है ना. जब रेड लाइट होती है तो मीन्स आपको रुकना है. व्हेन यू गेट ऑरेंज लाइट मीन्स गेट रेडी, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो, है ना. हैव नॉलेज अबाउट द साइन बोर्ड्स यूज ऑन रोड. हमेशा आपको साइन बोर्ड्स जो भी रोड पर यूज़ होते हैं उनकी एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. नेवर एक्सीड द स्पीड लिमिट वाइल ड्राइविंग. कभी भी अपनी स्पीड को इतना ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हो कि आप इंजर्ड हो जाओ और आप खुद को संभाल भी ना सको. सो हियर आई एम शोइंग यू सम साइन बोर्ड्स. यू जस्ट कीप ऑन योर माइंड दीज ऑल द साइंस for your safety purpose or for rules of the road, है ना. So this sign is for the stop, this is for the give up way, this one way, no parking, left turn prohibited, right turn prohibited, and no entry, T point, left turn, right turn, U turn, pedestrian prohibited, cycle prohibited, tonga prohibited, and truck prohibited. These all signs you just have to keep on your mind. Okay kids. Next thing, never use mobile. This is very important things that generally people are using mobile while they are driving on the scooters, on car, anywhere they are driving, or even when they are going on footpath, they also continuously they are using the mobile, and just because of these mobiles so many accidents are causes, है ना. सो नेवर यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग. कभी भी हमें ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए. ऑलवेज़ फास्टन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग. हमेशा सीट बेल्ट को बांधना चाहिए जब भी ड्राइविंग करते हैं. ऑलवेज़ यूज़ एन इंडिकेटर टू चेंज द लेन. जब हम लाइन को चेंज कर रहे हैं, लाइन चेंज करना है, हमें टर्न लेना है, तो हमेशा इंडिकेटर देना चाहिए. ऑन टू व्हीलर बोथ द राइडर शुड वेयर हेलमेट. हमेशा टू व्हीलर पे दोनों ही राइडर्स को हेलमेट पहनना चाहिए. ओवरटेकिंग शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम द राइट. अगर हम ओवरटेकिंग कर रहे हैं तो हमेशा राइट से करना चाहिए. एंड ऑलवेज लुक इनटू द रियर व्यू मिरर
बिफोर ओवर, और ओवरटेकिंग करते समय हमेशा हमें रियर व्यू जो मिरर होता है उसमें देख कर के ओवरटेकिंग करना चाहिए कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है ना। नेवर ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग, ड्रिंक करके कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन स्कूटर और कार्स फॉर ड्राइविंग बिफोर द एज ऑफ 18, कभी भी 18 साल से उम्र के कम बच्चों को ड्राइविंग के लिए स्कूटर्स कार्स नहीं देना चाहिए। एंड इट इज़ रियली ट्रू बिकॉज नाउ अडेज सो मेनी किड्स आर driving scooties because they just they are not they don't have the age of 18 but they are doing such kinds of things. So I just request to all parents, please don't give them scooties and other vehicle for driving before the age of 18. Always be careful while crossing an अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, हमेशा ऐसा रेलवे क्रॉसिंग जिस पर रेलवे फाटक ना हो या कोई ऐसे सिग्नल्स ना हो जो आपको बता रहे हो कि ट्रेन आने वाली है या नहीं आने वाली है, तब तक आपको वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। सो यू शुड बी केयरफुल बिफोर क्रॉसिंग द रेलवे लाइंस और रेलवे क्रॉसिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कम ऑन द रूल्स टू बी फॉलोड बाय द पेडेस्ट्रियंस। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं विद यू दैट रूल्स फॉलोड बाय द पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियंस मीन्स पैदल चलने वाले लोगों को भी क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए। पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है आर पीपल हु वॉक ऑन फुट और रोड ऑन द रोड, ऐसे लोग जो कि पैदल सड़क पर चलते हैं, दैट आर द पेडेस्ट्रियन। ऑलवेज यूज़ अ फुटपाथ टू वॉक ऑन द रोड, हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए रोड पर वॉक करने के लिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम द पेडेस्ट्रियन और जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा अपनी रोड को क्रॉस करना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग से। लुक केयरफुली फर्स्ट टुवर्ड्स योर राइट एंड देन लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग। यस, अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा राइट देखिए, देन लेफ्ट देखिए, अगेन राइट एंड देन क्रॉस द रोड। ऑलवेज मेक स्मॉल चिल्ड्रन वॉक टूवर्ड्स योर लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, आप हमेशा बच्चों को अपने लेफ्ट साइड में आपको रखना है जब भी आप रोड पर वॉक कर रहे हैं ना। यू ऑलवेज हैव टू कीप योर किड्स ऑन योर लेफ्ट साइड व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड। डू नॉट लेट चिल्ड्रन रन और प्ले ऑन द रोड, बच्चों को कभी भी सड़क पर मत छोड़िए भागने के लिए या खेलने के लिए, मतलब उन्हें कभी भी सड़क पर खेलना या भागना नहीं चाहिए। ट्राई नॉट यूज़ अ मोबाइल फ़ोन इवन वाइल वॉकिंग। यस, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्लीज़ डोंट यूज़ मोबाइल while you are walking or crossing the road. Okay, so these are the rules to be followed by the pedestrian. ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए रूल्स हैं जो कि उनको फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हियर इज़ द अनदर पॉइंट एंड दैट इज़ फायर सेफ्टी। अब फायर से सेफ्टी करने के लिए किस तरीके से हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, दैट आई एम टेलिंग यू हियर। सेफ्टी इन केस ऑफ फायर इज़ वेरी इसेंशियल बिकॉज अ सिंगल स्पार्क में लीड टू बिग हार्मफुल फॉर फायर एक्सीडेंट। हाँ, हमें फायर से सेफ्टी करने के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एक छोटी सी भी चिंगारी बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकती है। फायर एक्सीडेंट आर जनरली कॉज बाय द इलेक्ट्रिक स्पार्क। जनरली जो फायर से एक्सीडेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण, स्मोकिंग आग लगने के कारण, लीकेज ऑफ कुकिंग गैस और पेट्रोल और फायर क्रैकर्स। जो जनरली जो फायर एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स के कारण होते हैं, स्मोकिंग आग लगने के कारण होते हैं, या फिर गैस या पेट्रोल के लीक होने से, या पटाखों से मेनली, है ना। जनरली एवरी ईयर बाय इन फायर फैक्ट्रीज, इन क्रैकर फैक्ट्री सो मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड ना, जस्ट इन फायर इन क्रैकर्स फैक्ट्रीज़ ना। सो कहते हैं ना एक छोटी सी चिंगारी बड़े से आग को जन्म देती है। लाइक द सेम कि एक छोटी सी भी फायर होती है ना, इट कॉजेज अ बिग एक्सीडेंट, है ना। और दीज ऑल एक्सीडेंट्स जनरली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक स्पार्क, स्मोकिंग, लीकेज ऑफ कुकिंग गैस और पेट्रोल और फायर क्रैकर्स। सो व्हाट रूल्स वी शुड हैव टू फॉलो फॉर अवर फायर सेफ्टी, वी आर जस्ट टेक अ लुक हियर। नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड्स, कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को वेट हैंड से यानी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। Always wear rubber slippers while dealing the electric appliances or wire. This is because rubber is bad conductor of electricity. हाँ, हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रिक का कोई भी काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिक की चीज़ें छू रहे हो, पकड़ रहे हो, वायर्स का काम कर रहे हो, तो हमेशा रबर की स्लीपर पहनना चाहिए क्योंकि जो रबर होता है वो इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर मीन्स उसमें इतनी आसानी से बिजली का कोई असर नहीं होता है अगर हम रबर की स्लीपर पहने होते हैं। गुड और बैड कंडक्टर वही होते हैं जिस मतलब सुचालक और कुचालक मीन्स जिसमें बिजली आराम से अट्रैक्ट हो जाती है वो गुड कंडक्टर होता है, और जिसमें बिजली आराम से अट्रैक्ट नहीं होता दैट इज़ बैड कंडक्टर। ओके, तो ये जो रबर होती है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी नेवर थ्रो वाटर
ओवर इट। अगर किसी केस में इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लग जाती है तो कभी भी उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ऑन योर बॉडी एंड यू मे गेट शॉक। क्योंकि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए हम कहते हैं ना जो बिजली का उत्पादन होता है, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइट है, इट इज़ जस्ट थ्रू द वाटर के ही थ्रू होता है। बड़े बड़े डैम होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि ये जो वाटर होता है ये बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और अगर हम वाटर इसके ऊपर डाल देंगे तो ये हमारी पूरी बॉडी में करंट पकड़ लेगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो भी करंट या फायर कॉज होती है उसमें कभी भी आप वाटर को थ्रो नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फायर शुड बी पुट ऑफ विद द हेल्प ऑफ सैंड। जो इलेक्ट्रिक के कारण फायर लगती है हमेशा आप उसको सैंड बालू से बुझा सकते हो। फॉर बिग फायर बाय एक्सटिंग्विशर वी यूज़, और ज़्यादा बड़ी आग लगी हो तो जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं ना, ये लाइक दे, इनका यूज़ करके हम फायर को बुझा सकते हैं। कुकिंग गैस सप्लाई शुड बी क्लोज एट नाइट आफ्टर यूज़। हमेशा रात को खाना बनाने के बाद हमें अपना सिलेंडर ऑफ करना चाहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी पॉइंट, वी ऑल हैव टू फॉलो एट अवर होम। I also followed this thing daily and I just close at night, है ना, after use. So in case of leakage of cooking gas, all doors and windows should be open to let gas out. अगर इन केस कहीं भी लीकेज हो रहा है गैस का, कहीं से भी गैस निकल रही है, तो हमें सारे विंडोज़ और डोर्स को खोल के रखना चाहिए जिससे वो गैस बाहर निकल जाए। नेवर लाइट अ कैंडल और स्विच ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एज एनी स्पार्क। कहीं भी कोई स्पार्क हो रहा है तो हमें उसके पास कोई भी स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, कैंडल वगैरह कुछ नहीं जलाना चाहिए। मे इग्नाइट फायर एंड लीड बिगर फायर, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हम ज़रा सा भी उसके पास कोई कैंडल या कोई स्विच ऑन करेंगे तो हो सकता है ज़रा सी आग से बहुत बड़ी आग लग जाए। तो दिस थिंग्स यू जस्ट हैव टू कीप ऑन योर माइंड फॉर आवर फायर सेफ्टी। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ पॉसिबल कुकिंग गैस सिलेंडर शुड बी कैप्ड इन ओपन एंड सप्लाई पाइप शुड बी चेंज रेगुलरली। अगर हो सके तो जो हमें सिलेंडर्स होते हैं उनको एक ओपन एरिया में ही रखना चाहिए, और जो सप्लायर्स उसके जो पाइप होते हैं जो गैस तक हमारी गैस स्टोव तक गैस पहुंचाते हैं उनको चेंज करना चाहिए रेगुलरली। ऑलवेज वेयर कॉटन क्लॉथ्स वाइल कुकिंग, नेवर वेयर नायलॉन क्लॉथ्स बिकॉज दे आर कैच फायर ईजिली। हमेशा खाना बनाते समय हो सके तो कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, नायलॉन के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो जल्दी ईजिली गैस को कैच कर लेते हैं। फायर कॉज ड्यू टू द पेट्रोल शुड ऑलवेज, ऐसी फायर जो पेट्रोल के कारण लगती है शुड ऑलवेज बी पुट आउट थ्रोइंग सेंट और फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, वो मैंने आपको बताया, पेट्रोल वगैरह के कारण आग लगती है तो हमें हमेशा बालू से और फायर एक्सटिंग्विशर से बुझानी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज पेट्रोल इज़ अ लाइटर देन वाटर एंड हैंस फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कंटिन्यूस गेट एयर सप्लाई। इसका कारण ये होता है कि अगर हम पानी से बुझाएंगे तो जो पेट्रोल होता है वो पानी से लाइट होता है, और पेट्रोल जो होता है हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। जब पानी के ऊपर पेट्रोल तैरता रहेगा तो वो एयर के कांटेक्ट में आता रहेगा और एयर सप्लाई होती रहेगी उसको, तो आग जो है बढ़ती ही रहेगी, बुझेगी नहीं, है ना। तो इस वजह से हमेशा जब भी पेट्रोल या मतलब किसी भी पेट्रोल या डीज़ल पेट्रोल किसी की वजह से अगर आग लगती है वहाँ पे, तो हमें वो सैंड या फायर एक्सटिंग्विशर से बुझानी चाहिए, ना कि वाटर से। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट फायर क्रैकर शुड बी वार्न्ड बाय मेंटेनिंग प्रॉपर डिस्टेंस एंड बीइंग केयरफुल। येस, हमेशा जो फायर क्रैकर्स हैं वो एक डिस्टेंस के पर जलाना चाहिए, एक दूरी मेंटेन करके जलाना चाहिए। नेवर वन क्रैकर्स बाय होल्डिंग दैम इन योर हैंड्स, कभी भी पटाखों को अपने हाथ में लेकर के नहीं जलाना चाहिए। दिस इज़ बैड थिंग्स। ओके, दिस इज़ वेरी बैड। हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए जब भी हम पटाखे जला रहे हैं, है ना। सो here I have discussed with you some safety rules at different parts, है ना। different parts में मैंने आपके साथ आज safety rules discuss किए हैं। then some safety rules I have discussed with you on the road, when at the school, at the playground, है ना, और at the road, है ना, और सो एंड हाउ वी कैन सेव अवर फ्रॉम द फायर से सेफ्टी करने के लिए भी क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं। दिस एवरीथिंग आई हैव डिस्कस विद यू इन दिस चैप्टर। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर सेफ्टी पॉइंट्स ऑल्सो किड्स। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can ask me, kids. So please like this video, subscribe the channel, and further today, kids, thank you and have a nice day.